Since over here they have given to you is with respect to your stopping potential by varying incident frequency. Yani it's with stopping potential and with frequency they're trying to put forward. Since now when I want to solve this question, anyone who can tell me how to go about? तो तुरंत तुम क्या बोलोगे सर? आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन ले लो. Incident energy is equal to work function plus kinetic energy maximum. ये तुम्हारा फॉर्मूला है स्टूडेंट्स. एग्रीड. दिस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम को हम EBS में लिख सकते हैं, क्यों नहीं? इंसिडेंट एनर्जी को h न्यू आई लिख सकता हूँ मैं, इसको h न्यू 0 लिख सकता हूँ. व्हाई नॉट? इसको मैं यहाँ पे ले लूंगा तो व्हाट एग्जैक्टली h इन ब्रैकेट न्यू आई minus nu 0 is equal to E into Vs. So students, what exactly the graphical representation of change in frequency is E by h into Vs. E by h क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स? स्लोप. अगर तुम ध्यान से देखोगे the slope of the linear curve was found. स्टूडेंट्स उन्होंने देखो स्लोप दिया है, ध्यान से सुनना. अगर तुम प्रॉब्लम को देखोगे ना तो उन्होंने स्लोप दिया है. स्लोप क्या दिया उन्होंने? अप्रोक्सीमेटली 4.1 into what? 10 raised to minus 15. Students, ये दिया है potential difference and time is in second. Students, potential difference दिया है और second लिखा है. Are you getting it? यानी slope यानी क्या उन्होंने E by H दिया है या H by E दिया है? Can anybody tell me that? अगर मैं ये equation लेता हूँ students, ध्यान से सुनना, तो ये equation क्या होगा? Frequency which is dependent on stopping potential. Students, frequency depending यानी y proportional to x. तो ये मेरा slope हो जाएगा ना? स्टूडेंट्स कुछ समझ में आ रहा है? यहाँ पे क्या दिया है? Is it frequency with stopping potential or stopping potential with frequency? Yes, students, can you answer? यूनिट वोल्ट सेकेंड दिया स्लोप का, उसका मतलब क्या दिया तुम्हें? स्टूडेंट्स उसका मतलब ये h by e is equal to stopping potential upon frequency. स्टॉपिंग पोटेंशियल किस में होता है? वोल्ट में. फ्रीक्वेंसी का मतलब हर्ट्ज, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम 1/सेकेंड. तभी जाके इसका यूनिट क्या हो जाएगा? वोल्ट सेकेंड. यानी वोल्ट सेकेंड इज h by e. यानी स्टूडेंट्स तुम्हें क्या दिया है? h by e दिया है 4.1 into 10 raised to minus 15. क्या ये क्लियर हुआ? पूछा क्या है अभी तुम्हें? व्हाट इज द क्वेश्चन आस्क्ड स्टूडेंट्स? पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट. h पूछा है, बस खत्म हो गई बात. तो h को सब्जेक्ट बना दो ना. 4.1 into 10 raised to minus 15. What is the charge on electron, students? 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb. यानी जब भी तुम इसको सॉल्व करोगे स्टूडेंट्स तो तुम्हारा आंसर होगा जूल सेकेंड. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? You will get your answer approximately students 6.54 into 10 raised to minus 34. 6.54 into 10 raised to minus 34 students. Students, क्या ये क्वेश्चन क्लियर हुआ सबको? अरे यार हाँ या ना तो बोलो. If it's not, I'll re-explain you. If it is yes, tell me yes. Yes, It's sir. of no, it's of no use if in case if I'm only speaking it and I'm only doing it. ये किसके लिए कर रहा problems? तुम्हारे लिए problems कर रहा हूँ. So that you should be able to get it properly, students. I said, if you're not doing it in this manner, it's of no use. ये तुम्हें करना चाहिए. अभी ये वाले क्वेश्चंस और फिर आगे एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड न्यूक्लियर उसके भी क्वेश्चंस मेरे को प्रूव करना है स्टूडेंट्स. कि जब हम मिले थे वहां पे सेंटर में स्टूडेंट्स, तो दैट टाइम ईएमआई के मैंने क्लियरली बताया था. ईएमआई का हम लोग ने वहीं खत्म कर दिया स्टूडेंट्स. वी कंप्लीट विद रिस्पेक्ट टू ईएमआई. नाउ वी आर डूइंग प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन टू दिस.
Now, please, students, go ahead with the next question. Students, question number 9. Have you finished with this? क्या इसको erase कर सकता हूँ, students? Yes. Can I erase this? इसको erase कर दो. Okay, go ahead with the 9th one. Students, everyone, please. Solve 9th fast and give me the answer for the 9th one. Soham, are you there in lectures, Soham? Soham, are you there in lectures? It seems you are not in lectures. ये तुम्हारा माइक वगैरह कुछ नहीं है. Reply. Or you are out of lectures. Reply soon. सोहम, मैंने तुम्हें मैसेज सेंड किया है, इसका रिप्लाई करो. सोहम, माइक ऑन नहीं, यानी तुम मुझे सुन भी नहीं सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते हो. उसका मतलब क्या फिर लेक्चर्स में बैठना. And so those who have done with the 8th one, please go to the next one, 9th one. Fast. So it's 9th question क्या दिया हुआ है? Can anybody tell me how to go to the 9th one? The threshold wavelength of tungsten. Students, tungsten filament दिया है. Threshold wavelength. Students, threshold wavelength is actually lambda 0. ये ध्यान में रखना. Lambda 0 दिया है 2.76 into 10 to the power of -5 centimeters. Students, centimeters को अगर मैं meters में convert करूँ. Very good. हितांश ने आंसर दे दिया है ना. लेकिन पूछा है ना स्टूडेंट्स. There are 3 questions asked into it. Okay. 10 raised to -8. यानी कहने से this is 10 to the power of -10 meter. Sorry, 5 है ना, -7 meter होगा स्टूडेंट्स. Agreed. ये threshold wavelength है. Question number 9 पे है स्टूडेंट्स. This is threshold wavelength given to you. Okay. किसका है? Tungsten filament. Students, tungsten filament का मतलब क्या है? Wolfram. Latin name we consider. Is that clear? A पूछा स्टूडेंट्स, explain why no photoelectric are emitted when wavelength more than 2.75 into 10 to -5 centimeter. यानी फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन पॉसिबल नहीं हो रहा है. इट्स नॉट पॉसिबल स्टूडेंट्स. ओके. एक्सप्लेन व्हाई नो फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड व्हेन इंसिडेंट वेवलेंथ कितना दिया है? इज व्हेन द वेवलेंथ इज मोर देन 2.76. दैट मींस इंसिडेंट वेवलेंथ इज व्हाट? इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड. हाँ स्टूडेंट्स. तो देखो, हितांश ने इसका रिप्लाई दिया मुझे. तो मुझे बताओ, when exactly photoelectric effect takes place? कोई बता सकता है स्टूडेंट्स? अनम्यूट हो गए. हाँ स्टूडेंट्स, can you say it? Unmute, okay, can you say it, students? What is the reason?
Since photo electric effect के लिए students, your incident energy should be greater than work function. Incident energy is h nu I should be greater than h nu 0. समझ में आ रहा है students? यानी h c upon lambda incident should be greater than hc upon lambda 0. क्या ये समझ में आ रहा है? रीजन क्या? Since c is equal to nu into lambda, ये कैंसिल हो जाएगा. तो कहने से 1 upon lambda incident should be greater than 1 upon lambda 0. है ना students? Therefore, for photoelectric effect to take place, what about the threshold wavelength? What about the threshold wavelength? Should be what? Huh, students? Should be what? क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा जब भी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी ग्रेटर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी स्टूडेंट्स फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा. लेकिन अगर फोटो वेवलेंथ के हिसाब से जाओगे तो स्टूडेंट्स तो क्या होगा? तुम्हारा जो इंसिडेंट वेवलेंथ है स्टूडेंट्स ध्यान से सुनना, इट शुड बी व्हाट? लेस देन द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ. तो यहाँ पे क्या तुम्हें लेस मिल रहा है? तो देखो यहाँ पे तुम्हें लेस मिल रहा है नहीं. अगर तुम क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा? So 1 upon lambda incident is greater than 1 upon lambda 0 in this case. Are you getting it? So what about your threshold wavelength in this case? Is your threshold wavelength greater or less? Huh, students? So will the photoelectric effect will take place? ये देखो ना, incident wavelength is greater, incident wavelength should be less. ये तुम्हारा कंडीशन अप्लाई हो रहा है स्टूडेंट्स. ये तुम्हारे यहाँ पे कंडीशन अप्लाई हो रहा है. यानी यहाँ पे तुम्हारा फोटो इलेक्ट्रिक देखो ध्यान से सुना, उन्होंने क्या बोला है? इंसिडेंट वेवलेंथ इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड. लेकिन एक्चुअली जब भी तुम सॉल्व करते हो तो तुम्हारा इंसिडेंट वेवलेंथ शुड बी लेस देन थ्रेशोल्ड. तो will there be any photoelectric effect take place? No effect. Students, जब इसको explanation में डालना है तो you have to go in this manner mathematically. क्या A part सबको clear हुआ students? Students, is this clear to all of you all? All the students inside the group, is it clear? Chirag is saying it yes. What about this? Okay, fine. अभी B part के लिए क्या है students? What is the B part? What is actually B part? You are concerned with it? Very good. Hitanshi is also saying it. Gazafar, unmute कर अपने आप को. कहाँ था तू? लास्ट लेक्चर में कहाँ था? हाँ गजफर. सर नेट प्रॉब्लम था. नेट प्रॉब्लम था. यू दैट सच्ची में बोल, कहाँ रहता तू? वेयर डू यू स्टे गजफर? सर सच्ची में नेट प्रॉब्लम था. अच्छा, ओके फाइन. लेकिन ये प्रॉब्लम्स अभी तूने किए है? ये हो सर. ओके फाइन. तभी इसको कंसीडर कर. ओके स्टूडेंट्स, अभी बी पार्ट ध्यान से सुनो स्टूडेंट्स. बी पार्ट क्या है तुम्हारा? बी पार्ट ये है स्टूडेंट्स, व्हाट विल बी द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ejected in each of the following cases. अभी तुम्हें क्या पूछा है? काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम पूछा है. इसके अंदर केस 1 दिया है. व्हाट इज द फर्स्ट केस? First case is that if ultraviolet radiation, and what is the wavelength of incident light? 1.8 into 10 raised to minus 7. Minus 5 centimeter दिया है. Students, centimeter to meter क्या करोगे? Into 10 raised to minus 2. है ना? Incident light ये है students. ये तुम्हारा incident light हुआ. तो can you find out the kinetic energy? First case में. Can anybody give me the formula for this? हाँ students, बताओ. Why are the students are coming so late? Yes, students, can you find out the formula for kinetic energy maximum?
Sir, have I posted it? Yes, can you be loud? Sir, have I posted it? No, I didn't get it. पोस्ट नहीं किया भाई. अच्छा, ओके ओके ओके, या हितांश. यस यस यस. ओके, गॉट इट हितांश. स्टूडेंट्स अभी देखो उसने क्या क्या मालूम है. आइंस्टाइन जी इक्वेशन क्या स्टूडेंट, इसके पहले वाला इंसिडेंट इक्वेशन क्या था. इंसिडेंट एनर्जी इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम. हमें काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम चाहिए स्टूडेंट्स. कहने से इंसिडेंट एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन. इंसिडेंट एनर्जी का फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स. h into nu I, है ना स्टूडेंट्स. एवरीबॉडी. एंड c is equal to nu into lambda. तो कहने से मुझे फ्रीक्वेंसी नहीं दिया, मुझे वेवलेंथ दिया है. तो स्टूडेंट्स ये क्या होगा, hc upon lambda incident minus is the work function of the metal is known to you. Is the work function of the metal is known to you. Why not? We can get the work function. What exactly the work function of the metal we consider is, तो मैं वेवलेंथ दिया है तो कहने से hc upon lambda 0. तो can I get the answer for kinetic energy maximum? हाँ स्टूडेंट्स अभी देखो, यहाँ पे मैं hc को बाहर निकाल दूंगा. यहाँ पे होगा 1 upon lambda incident minus 1 upon lambda 0. स्टूडेंट्स अभी ध्यान से देखो, is lambda incident given to me? Yes. Is lambda 0 known to you? Yes. Is Planck's constant known to you? Why not? 6.65 into 10 to the power of minus 34. Is C known to you? Yes. इसकी वैल्यू क्या है? H की वैल्यू 6.63 into 10 raised to minus 34 जूल सेकेंड स्टूडेंट्स. C की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स? 3 into 10 to the power of 8 meter per second. Can I get my answer for kinetic energy maximum? और ये आंसर किसमें होगा स्टूडेंट्स? जूल में. क्या ये क्लियर हुआ? क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? ये आज अचानक इतने सारे स्टूडेंट्स कहाँ से आ रहे हैं? हाँ, ये क्या अविनाश सर ने सबको फोन करके खींचा है क्या? स्टूडेंट्स जबरदस्ती बैठने की जरूरत नहीं है. नो नीड टू सेट फोर्सफुली. इफ यू वांट यू कैन सेट. देयर आर सर्टेन स्टूडेंट्स हु आई एम सीइंग इट आफ्टर लॉन्ग टाइम. श्रीराज, somewhat, Giselle, जीविता, पता नहीं साहिली, तो पता नहीं सारे अलग अलग लेक्चर्स में बैठती है. सीम्स लाइक दैट वो अलग अलग आईडीज में भी बैठती है, मैंने देखा है शायद. एल्विस, कोमल, प्रेरणा, these are the people who are entering it, I feel like that for the first time. Kishan, this H Janvi, ये भी कोई नया है. फ्रेंड्स क्या ये क्लियर हुआ? काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम. ये तुम्हें आंसर अगर जूल में मिलता है स्टूडेंट्स, कैन यू कन्वर्ट फ्रॉम जूल टू ईवी? एनीबॉडी? ये आंसर जूल में मिलेगा स्टूडेंट्स. कैन यू कन्वर्ट फ्रॉम जूल टू ईवी? क्या करोगे? और स्टूडेंट्स ये भी ध्यान में दो, एवरीबॉडी लिसन केयरफुली स्टूडेंट्स. ये जो मैंने वेवलेंथ लिखा है ना, देखो मैंने मीटर में लिखा है स्टूडेंट्स, मैंने मीटर में लिखा है. अगर तुम चाहो तो इसको तुम एंगस्ट्रॉम में कर सकते हो, तुम्हारा तुम्हारा कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए. स्टूडेंट्स कोई कोई बता सकते हैं स्टूडेंट्स 2.76 into 10⁻⁷ मीटर को एंगस्ट्रॉम में कैसे लिखोगे? हाँ स्टूडेंट्स, ये कैलकुलेशन को इजी बनाना है तो ये मीटर को एंगस्ट्रॉम में कैसे लिखोगे, बता सकते हो स्टूडेंट्स? मल्टीप्लाई बाय 1000. यानी स्टूडेंट्स इसकी जगह पे तो क्या लिखोगे मालूम है? लैम्डा 0 क्या लिखोगे मालूम है? 2760 एंगस्ट्रॉम. ये होगा. लैम्डा इंसिडेंट क्या होगा? लैम्डा इंसिडेंट क्या होगा? मल्टीप्लाई बाय 1000. तो ये क्या होगा? 1800 एंगस्ट्रॉम. अभी देखो सॉल्व करो फ्रेंड्स, अभी सॉल्व करो इसको. इसको तुम सॉल्व करोगे ध्यान से. इसका मैं सिर्फ सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ स्टूडेंट्स. ये HC तो सही है,
यानी तुम्हारा क्या होगा 6.63 इंटू 10⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁻8। जब भी तुम इसको सॉल्व करोगे तो लैम्डा 0 माइनस लैम्डा 1 होगा, यानी ब्रैकेट में होगा 2760 माइनस 1800 डिवाइड बाय क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा स्टूडेंट्स, एग्रीड? दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, 2760 into 1800। अभी ये किसमें है, एंगस्ट्रॉम में। ये क्या है, एंगस्ट्रॉम स्क्वायर, यानी नीचे एक एंगस्ट्रॉम बचेगा जिसको तुम बाद में 10⁻⁻10 में कर सकते हो स्टूडेंट्स। ये तुम्हारा आंसर एंगस्ट्रॉम में होगा क्योंकि डिफरेंस एंगस्ट्रॉम में आएगा। ये क्या होगा, ये भी एंगस्ट्रॉम में, ये भी एंगस्ट्रॉम में, एक एंगस्ट्रॉम कैंसिल हो जाएगा, बचेगा एक एंगस्ट्रॉम बचेगा ना यहाँ पे, वो 10⁻10 होगा। अभी ये आंसर किसमें मिला मुझे, देखो सब्ट्रैक्शन इज मोर इजियर, और फिर तुम लॉग्स यूज कर सकते हो कि ये लोगैरिथम्स वाले प्रॉब्लम्स। अभी तुम्हारा आंसर जूल में होगा, जूल टू ईवी में कन्वर्ट करना स्टूडेंट्स, तो क्या करोगे, will you multiply or will you divide? Now students, what will you do? Anybody? Hitansh, बताओ Yes. क्या करोगे, will you multiply or will you divide? हाँ, students, 1 electron volt मैंने बता चुका हूँ, it's 1.6 into 10⁻⁻19 joule. So EV to joule multiply, joule to EV divide by 1.6 into 10⁻⁻19। स्टूडेंट्स अभी तुम ये नीचे लिखोगे ना 2760 into 1800 into 10⁻⁻10 लिखना, ऊपर कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ डिफरेंस आएगा। इसको तुम्हें पूरा सॉल्व करना है और वो तुम्हारा आंसर होगा काइनेटिक एनर्जी, एंड दैट आंसर विल बी गेटिंग इन टर्म्स ऑफ 2.40 eV। क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स सबको? स्टूडेंट्स, दिस पार्ट ऑफ द कैलकुलेशन यू हैव टू डू इट। अगर तुम ये पार्ट ऑफ द कैलकुलेशन में अगर स्टक अप हो गए, टेक इट फ्रॉम मी, इट विल बी ग्रेट। दिस इज सिंपली मैथ्स, इट्स नॉट फिजिक्स, ये ध्यान में रखना स्टूडेंट्स। क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स, काइनेटिक एनर्जी 2.40 eV? Chirag is saying it yes. What about the rest of the students? Those who have entered in new, H Janvi, Kashish. Kashish is also a new one, it seems. Jivita, Jazal. There are two Karan. There was one Karan. Karan था पहला और एक Karan था, वो पता नहीं कहाँ चला गया। श्वेत, श्रीराज, ओके। फ्रेंड्स, इसका सेकंड पार्ट क्या है? सेकंड पार्ट क्या है? सेकंड पार्ट फाइंड आउट द काइनेटिक एनर्जी। करण पूछा है फाइंड आउट द काइनेटिक एनर्जी, तुम्हारे लिए क्वेश्चन। Find the kinetic energy of ultraviolet radiation of wavelength 1.80 × 10⁻⁵ centimeters second। तो क्या आंसर कैसे करोगे? अच्छा, अल्ट्रावायलेट का तो मैंने कर दिया ना, सॉरी सेकंड पार्ट। रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी 4 × 10⁻15 हर्ट्ज इज मेड इंसिडेंट, तो कैसे करोगे करण? इसी का सेकंड पार्ट। रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी 4 × 10⁻15 हर्ट्ज इज मेड इंसिडेंट, तो क्या करोगे? So can you repeat? The second part of the question is, इसी का ये टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन हम कर रहे हैं, पेज नंबर 323, क्वेश्चन नंबर 9 कर रहा हूं मैं। वहां पे सेकेंड पार्ट पूछा गया है, फाइंड आउट द काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम फॉर द emitted electron if the incident frequency is 4 × 10⁻15 hertz।
तो कैसे करोगे? पहले केस में इंसिडेंट वेवलेंथ दिया, अभी सेकंड केस में इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी पूछ दिया है, तो कैसे करोगे? Anyone? Anybody? सुन, यहाँ पे देखो ना, सेम फॉर्मूला आएगा। कारण क्यों नहीं है यार, क्यों ऐसा कर रहा है? सेम फॉर्मूला आएगा, क्यों इतना टेंशन लेगा? ये इरेज कर दो स्टूडेंट्स, ये इरेज करो मैं, ये पहला पार्ट का इरेज। Yes, sir. अभी देखो ये सेकंड पार्ट के अंदर तुम्हें क्या है, इसी का सेकंड क्वेश्चन दिया है स्टूडेंट्स, तो बहुत इजी है। अभी तुम्हें क्या दिया है, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी दिया है स्टूडेंट्स। व्हाट इज द इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी? इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी कितना दिया है तुम्हें, 4 × 10⁻15 हर्ट्ज। तो यही फॉर्मूला यूज करो ना, इंसिडेंट एनर्जी इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। पूछा है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, तो लिखो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू इंसिडेंट एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन। इंसिडेंट एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, अभी एच न्यू आई लिखो ना, ये मत लिखो। यहाँ पे ये क्यों लिखा था, क्योंकि इंसिडेंट वेवलेंथ दिया था, अभी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी दिया है, तो ये तो आंसर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अरे हाँ सर, ये जूल में मिलेगा। माइनस वर्क फंक्शन क्या होगा, फिर वर्क फंक्शन का फॉर्मूला एच सी अपन लैम्बडा जीरो, और ये लैम्बडा जीरो दिया हुआ है, एच सी भी पता है तुम्हें। यानी स्टूडेंट्स ये आंसर निकालो, इसमें से इसको सबट्रैक्ट करो, जो आंसर मिलेगा दैट आंसर विल बी इन जूल। स्टूडेंट्स व्हाटएवर आंसर विल बी गेटिंग इट, ये आंसर तुम्हें जूल में मिलेगा। ये डिफरेंस जो है ना वो जूल में मिलेगा। स्टूडेंट्स तुम्हें किस में कन्वर्ट करना है, ईवी में, तो क्या करोगे, डिवाइड बाय हाउ मच, वो आंसर किस में आ जाएगा, ईवी में। क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? द सेकंड पार्ट ऑफ द आंसर विल बी 12.07 ई। स्टूडेंट्स क्या ये क्लियर हुआ? Yes, sir. कारण अभी क्लियर हुआ तुम्हें? हाँ sir. एच की वैल्यू क्या है बताओ फास्ट जल्दी से, एच की वैल्यू क्या होगी? 6.6 into 10 raised to minus 34. ओके, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी कितना दिया है? 4 into 10 raised to 15. इसका आंसर निकालोगे सेपरेट, माइनस एच सी बाय लैम्बडा जीरो। अगर तुम चाहो तो इसको तुम पहले भी सॉल्व कर सकते हो, वो फंक्शन एच दिया है 6.63, सी दिया है लैम्बडा जीरो कितना 2.76, इन दोनों का डिफरेंस जो निकालोगे वो जूल में आएगा, उसको डिवाइड Yes, करो, sir. जो आंसर आएगा उसको डिवाइड करो, ये आंसर विल बी 12.07। हाँ, ये कैलकुलेशन ज्यादा है, लेकिन स्टूडेंट्स कैलकुलेशंस करना उसको ऐसे ही मत छोड़ो, उसको सॉल्व करके तुम्हारा आंसर मैच करो स्टूडेंट्स, तो तुम अच्छी तरह से बोर्ड्स में भी स्कोर करोगे एंड विल बी एबल टू क्रैक इट फॉर सीईटी आल्सो। क्योंकि ऐसे कुछ क्वेश्चन स्टूडेंट्स, तुम्हारे ऐसे कुछ क्वेश्चंस पूछते भी है, ऐसे 4 से 5 क्वेश्चन पूछते हैं जहाँ पे जानबूझ के वो कैलकुलेटिव दे देते हैं, स्टूडेंट्स को टाइम कंज्यूमिंग लगता है। तो somewhere by estimation you should try to get the answer closest to the given options. Can I erase this, students? Yes, sir. Okay. Let's go to the next one. Right now we'll be doing questions based on two students. Photoelectric effect की करेंगे students for the time being, okay? Students, the next one, 10th one.
Since next matter photo current recorded in the micro ammeter. Students, micro ammeter का मतलब क्या है? यानी करंट मेजर कर रहा है माइक्रो एम्पियर्स में. स्टूडेंट्स ये ध्यान में रखना. Okay, micro ammeter experimental setup of photoelectric effect when the retarding potential is more than 0.8 volt if the wavelength of incident radiation is 4950. Students, retarding potential in the first case. Any stopping potential in the first case. Students, V1 is given to how much? 0.8 volt दिया. ये 10th क्वेश्चन हम कर रहे हैं स्टूडेंट्स. क्वेश्चन नंबर 10th. ओके, तभी जब वेवलेंथ कितना दिया है, करस्पॉन्डिंगली वेवलेंथ कितना दिया उन्होंने, it's given to you as 4950 angstrom. 4950 into 10 raised to minus 10 meter. Agreed? अगर मैं मीटर में लिखूं तो फिर if the source of incident radiation is changed, the stopping potential turns out to be 1 point. यानी अगर मैंने क्या किया है, अभी सोर्स को चेंज करूंगा तो source is changed. So now the stopping potential in the second case कितना है students? My stopping potential second case में कितना है? 1.2 volt. Okay, 1.2 volt. तो पूछा find the work function of the cathode material and the wavelength of the second source. Students, wavelength of the second source पूछा है. Okay, and और क्या पूछा उन्होंने? Work function. ये पूछा. Photo current recorded in microammeter and experimental setup. Students, the current is set up already. Can you get an answer for this, students? ये पहला केस स्टूडेंट्स. ये फर्स्ट केस और ये सेकंड केस जहां पे तुमने सोर्स को चेंज कर दिया. दोनों का स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग है, वेवलेंथ अलग है. वेवलेंथ ऑफ द सेकंड सोर्स लैम्डा 2 पूछा. Anybody? स्टूडेंट्स यहाँ पे भी तुम क्या यूज करोगे? अगेन आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक एक्सप्रेशन. स्टूडेंट्स, इंसिडेंट एनर्जी is equal to work function plus energy kinetic maximum. Again, students, kinetic energy maximum can be written in terms of what? EVS. तो ये तुम्हारा फॉर्मूला तुम EVS में लिख सकते हो. इंसिडेंट एनर्जी इज h nu I, वर्क फंक्शन प्लस EVS. तो क्या मैं मेरा पहला इक्वेशन इसके लिए लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स? देख लो, स्टॉपिंग पोटेंशियल मुझे दिया है तो EVS इन द फर्स्ट केस, इसको सब्जेक्ट बना देता हूँ मैं, इज इक्वल टू h into nu for the first one, first case, frequency minus work function of the metal element से W0 लिखो या phi0 लिखो, वो एक ही है. स्टूडेंट्स, क्या ये क्लियर हुआ सबको? इज दिस क्लियर? ये EVS for the first one, ये HC upon lambda in the first case. Agreed? Minus we consider work function. अभी स्टूडेंट्स यहाँ पे कैन आई फाइंड आउट द वर्क फंक्शन? हाँ, वर्क फंक्शन निकाल सकते हो. देखो ना, तो ये क्या होगा? हाँ सर, H मालूम है 6.63 into 10 raised to minus 34. C कितना है? 3 into 10 to the power of 8. वेवलेंथ इन द फर्स्ट केस कितना दिया है सर? 4950 into 10 raised to minus 10. ये यहाँ पे आ जाएगा तो माइनस EVS. E कितना है? 1.6 into 10 raised to minus 19 into स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना दिया? 0.8. ये जो आंसर मिलेगा स्टूडेंट्स, अगर मैंने इसको डिवाइड कर दिया 1.6 into 10 raised to minus 19 जूल से, तो कैन आई गेट माय वर्क फंक्शन ए EV? क्या इतना पार्ट क्लियर हुआ सबको? इज दिस मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू ऑल? तो सबसे पहले हम लोग वर्क फंक्शन निकालते हैं. कौन सा मेटल यूज किया?
हाँ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स आर यू गेटिंग इट? क्या ये समझ में आ रहा है तुम लोगों को? हाँ स्टूडेंट्स, अभी तुम्हें क्या करना है? हेलो, तुम्हें क्या फाइंड आउट करना है? तुम्हें फाइंड आउट करना है वेवलेंथ। वेवलेंथ को फाइंड आउट करना है तो या फ्रीक्वेंसी निकालो या वेवलेंथ निकालो। करोगे क्या स्टूडेंट्स? दो इक्वेशन वापस मिलेंगे तुम्हें। ईवीएस में लिखो ना, देखो ना, पहले इक्वेशन तुम्हारा कौन सा था? प्लीज लिसन केयरफुली। अभी दो इक्वेशन साइमल्टेनियसली होंगे तुम्हारे। पहले केस में तुम्हारा स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या था? ये ईवीएस वन है। ध्यान से इसको इसको सब्जेक्ट बनाओ स्टूडेंट्स, एवरीबॉडी ध्यान से सुनना। ये ईवीएस फॉर द फर्स्ट वन इज इक्वल टू, ये होगा एच डी वाई फॉर द फर्स्ट वन स्टूडेंट्स। एग्रीड? माइनस वर्क फंक्शन। सेकेंड केस में ईवीएस टू होगा एच, सेकेंड केस में फ्रीक्वेंसी माइनस वर्क फंक्शन। स्टूडेंट्स क्या मैं इनको सॉल्व कर सकता हूँ साइमल्टेनियसली? वर्क फंक्शन तो मेटेरियल विल रिमेन द सेम। सोर्स चेंज किया है स्टूडेंट्स। हेलो प्लीज, अगर तुम ध्यान से देखोगे जो एक्सपेरिमेंट मैंने बताया था स्टूडेंट्स, ये है तुम्हारा एमिटर, ये है तुम्हारा कलेक्टर। सोर्स यहाँ पे होता है। सोर्स की जो लाइट होती है फोटोन, वो जाके स्ट्राइक करेगी। स्टूडेंट्स पहला केस में सोर्स ये था, सेकंड केस में सोर्स चेंज हुआ, लेकिन जो एमिटर है वो तो कांस्टेंट है ना, उसको थोड़ी चेंज किया है। तो अगर मैं सबट्रैक्ट करूं स्टूडेंट्स, तो देखो साइमल्टेनियसली प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये तो कैंसिल हो जाएगा। अभी देखो, अभी तुम सॉल्व कर सकते हो? अरे हाँ सर, ये तो ई कॉमन आ जाएगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल द फर्स्ट वन, स्टॉपिंग पोटेंशियल द सेकंड केस, एच कॉमन आ जाएगा। न्यू वन के लिए सी अपॉन लैम्बडा वन माइनस एच सी अपॉन लैम्बडा टू। पूछा क्या है? पूछा क्या है? लैम्बडा टू। बाकी सब कुछ दिया हुआ है, देखो ना, सब कुछ दिया हुआ है तुम्हारे सामने है। ई, हाँ सर मालूम है, 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। VS1 कितना दिया है? 0.8। एग्रीड? माइनस VS2 कितना दिया है? 1.2। तुम तुरंत बोलोगे सर यहाँ पे तो आंसर नेगेटिव में आ रहा है। हेलो, नेगेटिव में आ रहा है। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो ना, लैम्बडा टू माइनस लैम्बडा वन। स्टॉपिंग पोटेंशियल देखो इसका बड़ा है स्टूडेंट्स, आई गेटिंग इट? तो corresponding what exactly is corresponding frequency also will be more, wavelength will be less। ये आंसर भी तुम्हें नेगेटिव में आएगा स्टूडेंट्स, जब तुम सॉल्व करोगे विल गेट योर आंसर इन दैट केस ओनली। यानी इट विल बी अ वैल्यू स्टूडेंट्स जो 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 कम होगा। ये जो वेवलेंथ होगा ना स्टूडेंट्स, लैम्बडा टू, एवरीबडी लिसन केयरफुली, तुम्हारा जो लैम्बडा टू की वैल्यू तुम्हें चाहिए ना, वो लैम्बडा वन से कम होगा, किसी भी हाल में कम होगा। क्योंकि फ्रीक्वेंसी सेकंड केस में इज ग्रेटर देन फ्रीक्वेंसी, क्यों? क्योंकि उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा है। स्टूडेंट जिसका स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा उसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा, उसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो उसका वेवलेंथ कम। अगर तुम देखोगे, लैम्बडा टू यहाँ पे आएगा, लैम्बडा वन यहाँ पे आएगा, तो ये छोटी वैल्यू तो सबट्रैक्शन नेगेटिव में आएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो सकता है। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे? हाउ टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम? अभी देखो, तुम ये मैंने पहले प्रेडिक्ट कर लिया। तो सोल्यूशन से पहले तुम्हें ये थियोरेटिकल नॉलेज है। अगर तुम्हें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मालूम है स्टूडेंट्स, तो तुम इजीली बिल्ट अप कर सकते हो ये कंसेप्ट। अभी अगर मैं सॉल्व करूं तो यहाँ पे क्या होगा सर? ऐसा करो ना, आप HC को कॉमन निकाल दो। व्हाई नॉट? तो E VS1 माइनस VS2, HC को मैं नीचे ले लो, इज इक्वल टू, ये क्या होगा सर? 1 अपॉन लैम्बडा वन माइनस 1 अपॉन लैम्बडा टू। नाउ कैन यू सॉल्व एंड गेट द वैल्यू ऑफ लैम्बडा टू? व्हाई नॉट? क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? क्या ये क्लियर हुआ सबको?
Yes, sir. डोंट जस्ट ब्लाइंडली से यस स्टूडेंट्स, समझ में नहीं आता हो तो अनम्यूट करके पूछो वापस। टेक्स्ट शायद मैं देखूं या नहीं देखूं या आगे चले जाओ, प्लीज इट शुड नॉट बी लाइक दैट कि मैंने पूछा था और सर ने बताया नहीं। अभी पूछना तो अभी बिंदास पूछो। और ये जो मैंने बताया था, ये फ्रीक्वेंसी वर्सेस स्टॉपिंग पोटेंशियल का ग्राफ भी स्ट्रेट लाइन की फर्स्ट क्वेश्चन, स्लोप ऑफ द ग्राफ ई बाय एच है, स्टॉपिंग पोटेंशियल और इसका सॉरी फ्रीक्वेंसी और इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी निकालोगे तो एच बाय ई होगा। पहला ही क्वेश्चन हमारा स्लोप का, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। और यहाँ पे किया क्या है, ये क्वेश्चन है कि स्टूडेंट्स तुम्हें बहुत बड़ा ये प्रॉब्लम दिखाई देगा, मेरी स्टूडेंट ये है क्या यार। स्टूडेंट्स ये प्रॉब्लम बहुत ही इजी है, थोड़ा सा उसको अच्छी तरह से रीड करने की जरूरत है। इसको ऐसे अभी तक तो जैसे प्रॉब्लम सॉल्व किया उसको भी वापस मैं बता रहा हूँ। स्टूडेंट्स, दो स्टूडेंट्स है जिन्होंने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना शुरू कर दिया। पहला वाला बोलता है करके कि भाई जब मैंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर लिया और ये जो एमिटर दोनों ने सेम रखा, स्टूडेंट्स दोनों ने जो एमिटर है वो सेम रखा है, दोनों केस में जो वर्क फंक्शन है एमिटर का वो सेम ही है दो स्टूडेंट्स का। लेकिन पहले स्टूडेंट ने क्या किया, पहले स्टूडेंट ने इंसिडेंट वेवलेंथ 4900 से स्ट्राइक किया तो उसको स्टॉपिंग पोटेंशियल मिला 0.8 वोल्ट। दूसरे स्टूडेंट को क्या, दूसरे स्टूडेंट ने क्या किया, दूसरे स्टूडेंट ने कुछ वेवलेंथ यूज किया लेकिन उसको पता नहीं था कौन सा वेवलेंथ यूज किया है। लेकिन वो पहले के जैसे कंपेरेबल सेम नहीं था लेकिन उसको स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा मिला तो खुश हो गया। तूने मुझे तेरे से आंसर ज्यादा मिला स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो जो पहले वाला ने किया वो बोलेगा उल्लू के पट्टे, तेरे को स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा मिला है, इसलिए ज्यादा मिला है क्योंकि तेरा करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ तूने छोटा लिया है, मैंने लॉन्गर वेवलेंथ लिया है, यानी तूने हाई फ्रीक्वेंसी वाला लिया है। तेरा लाइट अल्ट्रा वायलेट की तरफ ज्यादा गई है, मेरी मेरी लाइट रेड की तरफ ज्यादा गई है। तो समझ में आ रहा है, वो तुम्हें पूछा गया है तो हमने वर्क फंक्शन निकाल दिया जो मेरे को पूछा गया था। लैम्बडा टू मैंने निकाल लिया सेकंड केस में। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ योर स्टूडेंट्स? तो समझ में आ रहा है, कहना प्रोसीड फर्दर है, आगे बढ़ू मैं, आया ना तो बोलो। Yes, sir. कैन आई इरेज दिस, इसको इरेज कर दूं स्टूडेंट्स? हाँ स्टूडेंट्स, इसको इरेज कर दूं मैं? ओके, हाँ स्टूडेंट्स, गो फॉर द नेक्स्ट वन, 11th वन। स्टूडेंट्स कैसे प्रॉब्लम्स कैसे देखो, टेक्स्ट बुक की प्रॉब्लम देखो कैसे तुम्हें टीडियस लगता है। सोचो अगर यही लेवल तुम्हारा जीई के लिए चला जाए, एडवांस के लिए चला जाए तो कैसे होता है ना। हाँ वो बात है कि ये कैलकुलेशन ज्यादा है स्टूडेंट्स। जब भी तुम इसकी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की तरफ देखोगे ना तो सेम फॉर्मूला वैसे ही है, पैटर्न वही है स्टडीज का, उसमें कुछ चेंजेस ज्यादा नहीं है लेकिन तुम्हारे जो है वैल्यूज ऐसे देंगे कि वो कैंसिल आउट हो जाते हैं, कॉमन अच्छी तरह से निकल जाता है, तुम्हारे एरर्स कम हो जाते हैं, कैलकुलेशंस फास्ट हो जाते हैं। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे भी देते हैं जहाँ पे कैलकुलेशंस रहते हैं स्टूडेंट्स विच टेक्स लॉन्गर टाइम। ओके, गो अहेड विद द नेक्स्ट वन स्टूडेंट्स, 11th वन। You solve students 11th one.
बात है तो हिमांशु है। So the next one. Radiation of wavelength 4500 angstrom is incident students on a metal having work functions 2 eV. Are you getting it? What exactly radiation of wavelength 4500 angstrom is incident? So incident wavelength क्या है तुम्हारा? 11th वाला is equal to 4500 angstrom. This incident on a metal having work function of metal is 2 eV. Due to presence of a magnetic field B, means due to presence of a magnetic field B, okay, the most energetic photoelectrons emitted in the direction perpendicular to field move along a circular path of radius 20 centimeters. Since due to magnetic field, the charged particle performs circular motion of radius 20 centimeters. So 20 into 10 raised to minus 2. देखो कैसे चले गए वहां पे F is equal to QVB में. Since F is equal to QVB, समझ में आ रहा है? ये वाला concept आ गया यहाँ पे. So now it's going into a circular path of radius 20 centimeter, that is 20 into 10 raised to minus 2 meter. What is the value of magnetic field intensity? Students, B की value पूछिए. देखो now can you get an answer, students? Magnetic field की वजह से students. स्टूडेंट्स तुम्हें करना क्या है, जैसे ये इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में क्या है, तो फोर्स सेंट्रिपिटल इज इक्वल टू फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल. स्टूडेंट्स यानी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा. फॉर्मूला फॉर सेंट्रिपिटल फोर्स क्या होगा? mv स्क्वायर बाय r. ये क्या है? वेलोसिटी. व्हाट इज फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल पढ़ चुके हो, और अभी शायद जो हेमंत सर के लेक्चर्स में बैठते होंगे, यहाँ पे भी बैठते होंगे, वहां पे भी शुरू है. मेरे साथ में भी पहले किया हुआ है, फिर भी कुछ आइडिया नहीं है. मैग्नेटिक फील्ड फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? सिर्फ इट्स QVB. ये भी वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी कैंसिल हो गया, तो बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? आ गया ना, mv अपॉन QR, जिसको हम लिख सकते हैं mv अपॉन ER. क्या मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मालूम है? हाँ सर, 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम. ये कांस्टेंट वैल्यू है. ये क्या है? ये वेलोसिटी है. जो तुम्हें नहीं मालूम, सिर्फ तुम्हें ये फाइंड आउट करना है. चार्ज कितना है? 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम. रेडियस कितना है? 2 इंटू 10⁻1. यानी किसी भी हाल में अगर मुझे वेलोसिटी मिल जाए तो मुझे आंसर टेस्ला में मिल जाएगा. क्या ये क्लियर हुआ प्रॉब्लम? स्टूडेंट्स समझ में आ रहा है कैसे करना है? अभी तुम्हें क्या करना है? वेलोसिटी निकालना है. वेलोसिटी कैसे निकालोगे? सर आपने दिया ना, देखो ना, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी दिया है, थ्रेशोल्ड दिया है. तो सर आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन करते हैं ना, इंसिडेंट एनर्जी इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, यानी हाफ m v max square is equal to incident minus work function. Friends, half m v max square, incident क्या होगा? h nu I hc upon lambda incident minus work function. स्टूडेंट समझ में आ रहा है? हाँ स्टूडेंट्स, अभी तुम वेलोसिटी निकालोगे और यहाँ पे तुम्हें वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में चाहिए. अब यहाँ पे उन्होंने जानबूझ के EV में दिया है, तो देखो तुम आगे सॉल्व करोगे तो कैसे होगा स्टूडेंट्स? ध्यान से देखना स्टूडेंट्स. हाफ m v max square is equal to hc upon lambda I. ये जूल में होगा स्टूडेंट्स. माइनस ये जो वर्क फंक्शन दिया ना, उसको लिखोगे 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻. ये भी जूल में हुआ स्टूडेंट्स. ये तो देखो दोनों जूल में हुआ.
ये भी जूल में है, ये भी जूल में है। यानी स्टूडेंट्स तुम इसको सॉल्व करो, hc अपॉन लैम्बडा इंसिडेंट ये दिया है, उसमें से इसको सबट्रैक्ट करो, वो आंसर जूल में आएगा। फिर क्या करो, v max स्क्वायर 2 ऊपर चला जाएगा, मास नीचे आ जाएगा, और इन दोनों का आंसर यहाँ पे आएगा जो जूल में होगा। सॉरी, जो आई कैन पुट नाउ जूल चला गया, v स्क्वायर आ गया। अगर तुम्हें v max चाहिए तो क्या करोगे, रूट ऑफ दिस। व्हाट डज m स्टैंड्स फॉर, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या ये पार्ट क्लियर हुआ सबको? मींस ये क्लियर हुआ। तुम्हें वेलोसिटी चाहिए ना, यहाँ पे v चाहिए ना, तो v यहाँ से मिलेगा। देखो ना, काट के यहाँ पे v max कर लिया, ये दोनों का डिफरेंस निकाल दिया मैंने, लेकिन ये EV में से जूल किया, जैसे तुम्हारा डिफरेंस आया, देखो ना 6.63 3 to 10⁸, ये कितना होगा 4.5 × 10⁻7, ऊपर जाएगा +7, कैंसिलेशन करो, ये 3 और ये 45 कैंसिल होगा स्टूडेंट्स, ये 45 कैंसिल होगा, 3 और 45, 15 3 से 45, तो ये 15 आएगा, नीचे 15 आएगा, 6.6 डिवाइड बाय 15, उसको सॉल्व करना है, जो आंसर मिलेगा उसको 2/m से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ये 2 ऊपर चला गया, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन नीचे आ गया, फिर भी अभी स्क्वायर है, मुझे स्क्वायर नहीं चाहिए, मुझे v चाहिए, मुझे v स्क्वायर नहीं चाहिए, मुझे v चाहिए, क्योंकि यहाँ पे v स्क्वायर कैंसिल हो गया, इसके साथ मुझे v चाहिए, तो जो आंसर मिलेगा उसका रूट निकालो। ये आंसर किसमें मिलेगा तुम्हें, मीटर पर सेकेंड में, और ये तुम कहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे, कैन यू गेट मैग्नेटिक फील्ड? स्टूडेंट्स क्या ये क्लियर हुआ? स्टूडेंट्स क्लियर हुआ? देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। Tami, are you getting it? Tami, Siddharth, Shwet, श्रीराज, शरद, संकेत, समझ में आ रहा है? प्राची, घोष, करण, लोथ, करण जैन, वापस आया, करण जैन था, करण लोथ चला गया। जिजाल, who's a visitor, बहुत टाइम के बाद में आया है जिजाल, मेरे पे मेहरबानी करने के लिए। हितांश, are you getting it? हितांश, हर्ष, are you understanding? Chirag, are you understanding? Native has stopped responding completely. Even a friend, Shaili also, she has stopped responding completely. Jivita, are you getting it? Prajapati, Gazafar, समझ में आ रहा है Gazafar? Yes, sir. Dhara, Siddharth, Malak Joshi is not responding, पहले respond करता था. Elvis, Prerna, Komal, Krishan, Parthi, so many students. None of them are responding. Students, क्यों अपना studies को tough बना रहे हो? Why are you making studies so tough? Students, I'm making things easy for you all, so that you should be able to crack it properly. Erase कर दो अभी students इसको. Can I erase it? Can I erase students? Okay. So the next one, the 12th one.
So एक फॉलोइंग डेटा दिया हुआ है तुम्हें, उस डेटा को देखते हुए यू हैव टू स्टार्ट फाइंडिंग आउट द आंसर अकॉर्डिंगली। शायद देखोगे तो टैबुलर कॉलम में दिया स्टूडेंट्स। Twelfth question speaks about right hand side में उसका column form में दिया स्टूडेंट्स। Given the following data for incident wavelength and the stopping potential obtained from an experiment of photoelectric effect, estimate the value of Planck's constant H पूछा and work function of the cathode material. Which means work function एक constant value है, लेकिन जरूरी नहीं कि तुम्हें same answer मिले स्टूडेंट्स। वो देखो तुम अगर टेक्स्ट बुक में देखो तो उसका आंसर देखो 6.42 है, तुम्हारा ऑर्डर सेम ही होगा -34 स्टूडेंट्स, वो चेंज नहीं होगा, लेकिन वो जो 6.63 हम लिखते हैं वो चेंज होगा स्टूडेंट्स। वो पार्ट है यहाँ पे, यानी तुम्हें ध्यान से करना जरूर, जानबूझ के जब ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा तो 6.63 भी देंगे, 6.42 भी देंगे, तुम्हें ये पता होना चाहिए क्या है। तो तुम्हें पूछा है Planck's constant and the work function of the cathode material, what is the threshold frequency and corresponding wavelength, what is the most likely metal used for the emitter, यानी कौन सा मेटल है वो भी तुम्हें पूछा गया है। ओह माय गॉड, कौन सा मेटल है वो भी तुम्हें पूछा गया है। Can you tell me how to go about this? तो बता सकते हैं कैसे करोगे इसको? Incident wavelength and stopping potential are given to you. Incident wavelength and stopping potential are given to you. तो यहाँ पे अभी देखो तुम्हारे दो केसेस आएंगे स्टूडेंट्स। पहले केस में तुम्हारा इंसिडेंट वेवलेंथ क्या है स्टूडेंट्स? इट्स 2536 एंगस्ट्रॉम। एग्रीड। उसका करस्पॉन्डिंग स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है? Vs1 is 1.95 वोल्ट। सेकेंड केस में तुम्हारा इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी क्या है? 3650 एंगस्ट्रॉम, और उसका करस्पॉन्डिंग स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना दिया है? 0.5 वोल्ट। यहाँ पे तुम्हें पूछा है स्टूडेंट्स obtained stopping potential obtained from an experiment on photoelectric, estimate the value of Planck's constant, the work function। तो सबसे पहले तुम्हें क्या आंसर मिल सकता है? तो Planck's constant मिल सकता है स्टूडेंट्स, क्यों नहीं? तुम्हारा वर्क फंक्शन कैंसिल हो जाएगा, दो इक्वेशन मिलेंगे ना स्टूडेंट्स, ये दो एक्सप्रेशन है। अभी देखो इक्वेशन कौन सा? आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, इंसिडेंट एनर्जी इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। दिस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम को कैसे मैं लिख सकता हूँ? ईवीएस में लिख सकता हूँ, क्यों नहीं? तो कहने से इंसिडेंट एनर्जी, अभी मुझे दिया क्या स्टूडेंट्स? इंसिडेंट एनर्जी, फ्रीक्वेंसी नहीं दिया मुझे, वेवलेंथ दिया है स्टूडेंट्स। ये इंसिडेंट है, ये इंसिडेंट वेवलेंथ है, ये इंसिडेंट वेवलेंथ सेकंड केस, ये केस 1 और ये केस 2, ये ध्यान में रखना जरूरी है। तो इंसिडेंट का फॉर्मूला क्या होगा सर? एच न्यू आई, तो एच सी अपॉन लैम्बडा इंसिडेंट इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस EVS1, है ना स्टूडेंट्स? सेकंड केस में एच सी अपॉन लैम्बडा 2 इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस EVS2। मुझे H पूछा है, तो क्या मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ साइमल्टेनियसली? somebody has, ठीक है स्टूडेंट्स, क्या मैं इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके आंसर लेके आ सकता हूँ? हाँ सर, ये प्लस का माइनस हो जाएगा, ये प्लस का माइनस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, यानी ये एच सी बाहर आ जाएगा। ब्रैकेट में क्या आएगा? 1 अपॉन लैम्बडा फर्स्ट 1 माइनस लैम्बडा 2 इज इक्वल टू, ये तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा? ई बाहर आ जाएगा। ये क्या होगा? स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ द फर्स्ट वन, स्टॉपिंग पोटेंशियल, है ना? अभी देखो स्टूडेंट्स, अभी तुम्हें मिलेगा आंसर, एच मिलेगा, सारी वैल्यूज पता है। अभी तक मैंने जहाँ यहाँ पे मैंने वेवलेंथ स्टूडेंट्स एंगस्ट्रॉम में रखा है, तो प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं स्टूडेंट्स। एच इंटू क्या होगा? सी, ये क्या होगा? लैम्बडा 2 माइनस लैम्बडा 1, यानी क्या होगा स्टूडेंट्स? 3650 में से 2536, अभी जो तुम सब्ट्रैक्ट करोगे उसका यूनिट एंगस्ट्रॉम में है। ये जो डिनोमिनेटर तुम मल्टीप्लाई करोगे ना स्टूडेंट्स, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, यानी 2536 मल्टीप्लाई बाय 3650, ये होगा एंगस्ट्रॉम स्क्वायर में होगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी एंगस्ट्रॉम बचा कि नहीं बचा? इज इक्वल टू E VS1 minus VS2 1.95,
माइनस 0.5। स्टूडेंट्स तुम्हें h चाहिए तो h को एक तरफ ले लो, बाकी सबको उस तरफ ले लो। ये क्या होगा स्टूडेंट्स, ये h है, ये क्या है 3 into 10⁸ ये डिफरेंस तुम्हें आएगा, ये मल्टीप्लिकेशन आएगा, लेकिन ये जो मल्टीप्लिकेशन लिखोगे ना इंटू 1/10⁻⁻10 लिखना। ये क्या है 1.6 into 10⁻⁻19। ब्रैकेट में क्या होगा, ब्रैकेट में क्या होगा 1.95 माइनस 0.5, यानी ये कितना होगा, दिस विल बी 1.45। स्टूडेंट देखो, ये वाली मालूम है, ये मालूम है, ये मालूम है, न्यूमरेटर मालूम है, डिनोमिनेटर मालूम है, ये मालूम है, कैन यू गेट द वैल्यू ऑफ h। स्टूडेंट्स क्या ये पार्ट क्लियर हुआ, फर्स्ट पार्ट हाउ टू गेट h। स्टूडेंट्स आई एम गेटिंग इट। स्टूडेंट्स ये प्रॉब्लम्स करने जरूरी थे क्योंकि ये प्रॉब्लम्स लेंदी है, तुम्हें फॉर्मूला समझना जरूरी है, लेकिन प्रॉब्लम्स करने के टाइम पे स्टूडेंट्स कैलकुलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉग कैलकुलेशन करके आंसर को मैच करना है। और अगर तुम चाहो तो पहले क्रॉस चेक करना विद कैलकुलेटर स्टूडेंट्स, लेकिन ये कभी भी कैलकुलेटर से नहीं करते। और अगर चलो स्टूडेंट तुम ट्राई भी करोगे ना कैलकुलेटर से, तुम ट्राई करके देखो, हिमांशु ने आंसर भी डाल दिया वहाँ पे, एक मिनट भी कैसे यार, प्लैंक्स कांस्टेंट 1.11 में कहाँ से आएगा, 6 पॉइंट में आएगा ना। हिमांशु ऐसे क्या कर रहा है तू, मुझे हार्ट अटैक दे रहा है। अच्छा वो डिफरेंस ऑफ द वेवलेंथ बता रहा तू, ओके फाइन। ये he's writing difference of the wavelength। ये पूरा सॉल्व करना है स्टूडेंट्स, अगर तुम कैलकुलेटर से भी करना चाहोगे ना तो भी तुम्हारा आंसर सही नहीं आएगा, बिकॉज मेनी पीपल डोंट नो हाउ टू यूज कैलकुलेटर्स आल्सो, ये भी एक प्रॉब्लम है। स्टूडेंट्स पहले ये डिफरेंस निकालना, और ये जो है इसका प्रोडक्ट, अगर तुम चाहो तो इसको 2.5 में लिखो इंटू 10⁻3, ये 3.6 इंटू 10⁻3 लिख सकते हो, पीछे 10⁻10 तो 3 and 3 6 आ जाएगा, ये -10 यानी -4, ट्राई टू मेक इट इजियर। तो -4 ऊपर चला जाएगा तो +4 हो जाएगा, 8 + 4 12 है, ये -19 है, तो वो भी सॉल्व करना है। फिर तुम्हें h की वैल्यू लेके आना है। क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स आर यू ऑल गेटिंग इट? Strength was 34. 2 students went out. Just as the time is tending to reach towards termination of the lectures, people are going to go out. Why do you enter inside? Why are you wasting your parents' hard-earned money? Students, क्या ये clear है? हाँ या ना बोलो, तो मैं आगे बढ़ूँ. Is it clear? यहाँ आंसर स्टूडेंट्स, अभी तुम्हें क्या पूछा, वर्क फंक्शन पूछा स्टूडेंट्स। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा, वर्क फंक्शन। तो क्या करो, जैसे तुम्हें h की वैल्यू मिली ना स्टूडेंट्स, ये तुम्हें h की वैल्यू मिल गई, तो या तो ये इक्वेशन यूज करो या तो ये इक्वेशन यूज करो। वो देखो ना, तुम ये इक्वेशन, तुम्हें वर्क फंक्शन पूछा है, देखो अगर मैं पहला वाला लेता हूँ तो वर्क फंक्शन क्या होगा, EBS, एग्रीड, यानी EBS on the first one, सॉल्विंग पोटेंशियल, सॉरी वर्क फंक्शन किया ना, तो इसमें से इसको सबट्रैक्ट करो। क्या h की वैल्यू मिली? यस, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ h, व्हिच वैल्यू ऑफ h विल बी गेटिंग हाउ मच, 6.42 into 10⁻34 जूल सेकेंड, यही वैल्यू लेंगे स्टूडेंट्स। तुम अपनी h की वैल्यू जो स्टैंडर्ड वैल्यू वो मत ले सकते हो, यू कैन टेक दैट 6.63 into 10⁻34, ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू वो नहीं ले सकते। जो तुम्हें h यहाँ पे मिला वही h तुम यहाँ पे डालोगे। तो h तुम्हें पता है, हाँ सर, c पता है, हाँ सर, इंसिडेंट वेवलेंथ पता है, हाँ सर, लेकिन ये मीटर में आएगा। E मालूम है, यस, 1.6 into 10⁻19। स्टॉपिंग पोटेंशियल इन द फर्स्ट केस मालूम है, यस, कैन यू गेट द वर्क फंक्शन। ये जो वर्क फंक्शन मिलेगा स्टूडेंट, ये वर्क फंक्शन मिलेगा जूल में। अगर मुझे ईवी में चाहिए
तो जो आंसर आया डिवाइड बाय 1.6 इंटू 10⁻19, तो ये आंसर होगा मेरा ई में। क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? ये जो आंसर तुम्हें मिलेगा वो तुमने अगर यहाँ पे डाल दिया और डिवाइड कर दिया तो ये आंसर किसमें मिलेगा तुम्हें? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? इज दिस पार्ट क्लियर? तो तुम्हें वर्क फंक्शन मिल गया किसका? कैथोड मटेरियल यानी एमिटर के बारे में। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इन द करस्पॉन्डिंग? यहाँ पे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पूछा है। स्टूडेंट समझेगा ना, तुम्हें वर्क फंक्शन मिला। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वर्क फंक्शन? वर्क फंक्शन इज इक्वल टू h इनटू, ये क्या है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो तुम क्या न्यू जीरो निकाल सकते हो? हाँ सर, तुम्हें अगर फी जीरो मिला है ये वाला आएगा आंसर, डिवाइड बाय h कर दो बस, ये फ्रीक्वेंसी मिलेगा हर्ट्ज में। तुम्हें और क्या पूछा है? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ पूछा है, तो या तो तुम एच सी बाय लैम्बडा लो या तुम ये लो ना, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ सी अपॉन लैम्बडा जीरो। सी की ये जो आएगा वो इसमें यूज करो। स्टूडेंट्स ये सारे लिंक में है। तुम एच की वैल्यू दूसरे में डालो तो तुम्हें फी जीरो मिलेगा, फी जीरो की वैल्यू यूज करते हुए तुम्हें न्यू जीरो मिलेगा, न्यू जीरो की वैल्यू यूज करते हुए तुम्हें लैम्बडा जीरो मिलेगा। ये आंसर तुम्हारा मीटर में आएगा, ये तुम्हारा आंसर हर्ट्ज में आएगा, ये तुम्हारा आंसर जूल में चाहो तो जूल में, ईवी में कन्वर्ट करना तो ईवी में। जब भी तुम लेकिन इसको सॉल्व करो ना स्टूडेंट, तो इसको जूल में ही लेना क्योंकि तुम्हें हर्ट्ज में चाहिए। क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? द लास्ट टू पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 12 ऑफ योर टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 323। क्या ये क्लियर है? आया ना? Chirag is saying it yes. Himanshu is saying it yes. What about Hitansh? Himanshu is there. Himanshu is going to answer. Chirag is answering. I don't know about Gazafar. Gazafar, are you getting it? Gazafar? Gazafar, समझ में आ रहा है Gazafar? Yes, sir. Okay. Manasvi, what about you? Manasvi, what about you? शायरी, okay, क्या बात है यार, शायरी ने, मालव ने रिस्पॉन्स किया, शायरी रिस्पॉन्डिंग। पता नहीं आज आज कहाँ से सूरज निकल गया। नेदिप को समझ में नहीं आ रहा, नेदिप है ही नहीं, नेदिप she went away. No, Nedip went sir, away. I am there. You are there, but you're not replying, you're not responding at all. Okay, fine, students. Can I erase this? Is my erase करते students? अभी स्टूडेंट्स दूसरे क्वेश्चन जो है तुम्हारे de Broglie wavelength के स्टूडेंट्स, वो जो तुम्हारे क्वेश्चन आ रहे हैं वो सारे de Broglie wavelength के। हाँ स्टूडेंट्स, can I erase it? Erase कर दूं मैं इसको? स्टूडेंट्स erase करूं मैं?
That's basically probably with the questions you should be able to crack it. Now this is our page number 323 students. We are doing the 13th one. 13th ke 2 questions. Means 13th A and B. Please try it out. Let's see who can get the answer for A and B. Fast. Anybody? Calculate the wavelength associated with an electron. Is anybody? Calculate the wavelength of association associated with an electron, its momentum and speed. So can you tell me the formula, students? पहला कैसे पूछा when accelerated through a potential equal to 54 volt. इसके लिए पूछा है calculate the wavelength associated with an electron, its momentum and speed. Students, जब भी वो accelerate हो रहा है पहले केस में with a potential difference of 54 volt. ये पहला केस है. Second case में when it is moving with kinetic energy of 150 eV. दो केसेस है स्टूडेंट्स. तो पहले केस के लिए अगर मैं वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालूंगा, दूसरा क्या पूछा होगा ना, मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके, एंड स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो स्टूडेंट्स मुझे बताओ लैम्बडा ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है फॉर्मूला? ऑफ कोर्स 12.27 अपॉन रूट ऑफ v इन एंगस्ट्रॉम. तो ये तुम्हारा फॉर्मूला है, तुम्हें बता चुका तुम्हें. हाँ स्टूडेंट्स, कुछ याद आ रहा है स्टूडेंट्स? लैम्बडा इज इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट 2n ev. ये तुम्हारा फॉर्मूला है, एक्चुअल फॉर्मूला ये है. लेकिन अगर मैं इलेक्ट्रॉन का बात करूँ तो मैंने प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू डाली थी, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डाल दिया, चार्ज, और पूरा सॉल्व करोगे तो 12.27, सम बुक्स विल गिव मी 12.28, और मैंने जानबूझ के एंगस्ट्रॉम में लिखा. और ये क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस. ये वेलोसिटी नहीं है स्टूडेंट्स, ये है पोटेंशियल डिफरेंस. यानी यहाँ पे तुम 54 वोल्ट डालोगे तो तुम्हें ये आंसर मिल जाएगा. ये पहला केस हुआ. एग्रीड स्टूडेंट्स? What is lambda? Lambda is equal to h by p. So what exactly momentum of a photon? So momentum of a photon is equal to what? H by lambda. H तुम्हें मालूम है? हाँ सर, 6.63 into 10 raised to minus 34. लैम्बडा ये वाला वैल्यू यहाँ पे आएगा. स्टूडेंट्स क्या ये क्लियर हुआ? स्टूडेंट्स क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स सबको? यानी देखो स्टूडेंट्स, जब तीन चीज पूछता है ना तो पहला का आंसर दूसरे में आएगा. जैसे तुम्हें मोमेंटम मिला स्टूडेंट्स, व्हाट एक्जैक्टली वेलोसिटी चाहिए. मोमेंटम इज इक्वल टू व्हाट? मास इनटू वेलोसिटी. व्हाट इज वेलोसिटी? मोमेंटम अपॉन मास. क्या तुम्हें मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन मिला है? हाँ सर, ये जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पे डालोगे. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? ये आंसर आएगा तुम्हारा मीटर पर सेकेंड.
ये जो होगा विल बी इन एंगस्ट्रॉम। स्टूडेंट्स क्या ये क्लियर हुआ सबको? फर्स्ट पार्ट, इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू ऑल? तो भैया मिलेगा 1670 एंगस्ट्रॉम मिलेगा स्टूडेंट्स, ये आंसर मिलेगा तुम्हें 1670। यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा तो P विल बी 1.67 into 10 raised to minus, sorry, 1670. So 1.67 into 10 raised to minus 7. I can use that. और ये मुझे मिलेगा मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको सॉल्व करोगे, ये P यहाँ पे आएगा, इसकी वैल्यू यहाँ पे आएगी स्टूडेंट्स, और तुम्हें वेलोसिटी मिलेगा। Now can you get me the second part? Second part क्या पूछे स्टूडेंट्स? Find out again. अभी क्या पूछे स्टूडेंट्स? Find out the wavelength, momentum and speed of electrons students when its kinetic energy is given to us 150. स्टूडेंट्स अभी इसकी kinetic energy थी। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले तो मैं वेलोसिटी निकाल सकता हूँ स्टूडेंट, देखो ना काइनेटिक एनर्जी दी है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा सर? हाफ एम वी स्क्वायर। तो अगर मैं ये पहला आंसर निकालूं स्टूडेंट्स, ये तो मिल सकता है ना वेलोसिटी, ये सेकंड केस के लिए है। तो वेलोसिटी क्या होगा? वेलोसिटी स्क्वायर क्या होगा? 2k/m। तो वेलोसिटी क्या होगा? √2k/m, है ना स्टूडेंट्स? लेकिन ये आंसर स्टूडेंट्स तुम्हें मीटर पर सेकंड में अगर चाहिए तो काइनेटिक एनर्जी ईवी में नहीं होनी चाहिए, वो 150 into 1.6 into 10⁻⁻19 जूल में होनी चाहिए, तो तुम सॉल्व कर सकोगे। क्या ये क्लियर हुआ? ये मैंने थर्ड पार्ट निकाल दिया पहले। स्टूडेंट्स क्या ये क्लियर हुआ? हाँ स्टूडेंट्स, अगर मेरे को पहला पार्ट चाहिए तो वो भी लिख सकते हो। देखो ना ये तुम्हारा फॉर्मूला आ गया, ये देखो तुम्हारा फॉर्मूला आएगा, ईवी की जगह पे काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा, वेवलेंथ मिलेगा तुम्हें, है ना स्टूडेंट्स? अगर सपोज मैंने लैम्बडा पूछा है तो देखो फॉर्मूला क्या होगा? h/√2m। व्हाट इज ईवी? चार्ज एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। तो कहना दिस इज काइनेटिक एनर्जी। देखो ना अभी के डाल दो यहाँ पे, h की वैल्यू मालूम है तो लैम्बडा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ऑफ कोर्स, लैम्बडा अगर 6.63 into 10⁻34 लेते हो, √2 into 9.1 into 10⁻31 किलोग्राम लेते हो, काइनेटिक एनर्जी को 150 into 1.6 into 10⁻19 में लेते हो स्टूडेंट्स, तो ये आंसर मुझे मिलेगा into 10⁻10 मीटर में। ये तुम्हें वेवलेंथ मिलेगा, एंगस्ट्रॉम में मिल जाएगा तुम्हें आंसर। अभी मुझे मोमेंटम चाहिए, तो व्हाट एग्जैक्टली मोमेंटम? P is equal to h/λ। h मालूम है, लैम्बडा ये है स्टूडेंट्स। अगर अगर देखो मैं लैम्बडा पहले फाइंड आउट करूं, ध्यान से सुनो स्टूडेंट्स, अगर मैं लैम्बडा पहले फाइंड आउट करूं तो मुझे ये फॉर्मूला लेना पड़ेगा टू गेट P। लेकिन अगर सपोज मैं उल्टा जाऊं, अगर मुझे वेलोसिटी पता चल गई तो कैन यू फाइंड आउट P? यस, P is equal to m into v। सिंपल है। लेकिन उन्होंने उल्टा नहीं पूछा है, उन्होंने ये ऑर्डर में पूछा है, इसलिए स्टूडेंट्स पहले वेवलेंथ निकालना पड़ेगा, मोमेंटम के लिए वेवलेंथ का यूज करना पड़ेगा, और फिर उसके बाद में तुम यहाँ पे जा सकते हो। अगर सपोज तुम्हें वेलोसिटी से इधर जाना है तो इजी होगा, P is equal to m into v। मास में मालूम है, वेलोसिटी यहाँ से मिल गया, जैसे तुम्हें P मिल गया तो तुम कह रहे थे लैम्बडा इज इक्वल h/p, लैम्बडा भी आ जाएगा तुम्हारा, वो बहुत फास्ट हो जाता है स्टूडेंट्स। लेकिन यहाँ पे उल्टा नहीं पूछा है, उन्होंने पहले वेलोसिटी नहीं पूछा, उन्होंने पहले जानबूझ के वेवलेंथ पूछा क्योंकि तुम्हारा कैलकुलेशंस बढ़ते हैं यहाँ पे। स्टूडेंट्स क्या ये क्लियर हुआ? थर्टी 36 की स्ट्रेंथ थी, अब इसी का 27 पे आ गई। देख तेरे संसार की हालत क्या होगी भगवान, कितना बदल गया। स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा है यार ये सब? नो लाइफ एट ऑल, नो लाइफ, ऐसे क्यों, क्या हुआ है? व्हाट्स द रीजन गिवन? व्हाई देयर इज नो लाइफ इन दिस मैच? स्टूडेंट्स तुम लोग क्लासरूम में भी वैसे ही चुप बैठते हो यार, ऐसे करोगे बहुत हालत खराब होगी स्टूडेंट्स, पीछे रह जाओगे बाकी स्टूडेंट से।
बाकी स्टूडेंट्स आगे भागेंगे, तुम पीछे रह जाओगे और फिर ब्लेम करना शुरू करोगे कि काश में फलाने में होता, ढिकने में होता, उधर होता, ये होता, वो होता. Students, I'm not saying about myself, but take it from me, you are into good hands. You are into good and safe hands. The idea is the under which if you see the faculty who are coming to teach you, whether also they are good enough. I'm not saying about myself, but yes, all the other faculties are very, very good enough in that case. उससे maximum लो ना तुम वहां से. Opportunities मिलती है स्टूडेंट सबको मिलती है, लेकिन ग्रैब करना भी तो इम्पोर्टेंट है. और ये जानबूझ के चैप्टर्स के मैं क्वेश्चंस क्यों सारे करा रहा हूँ, क्योंकि देखो करने से पता चलता है कि कितना लेंथीनेस है इसमें. स्टूडेंट्स इसके एमसीक्यूज भी करोगे ना तो यही फॉर्मूलाज यूज करने हैं तुम्हें, ये ऐसे टाइप के ही प्रॉब्लम्स आने वाले हैं सीईटी में भी, लेकिन उनका कैलकुलेशंस थोड़ा सा इजियर होगा. बस वही है, लेवल का कैलकुलेशन, लेकिन सोच वैसी जानी चाहिए. योर थॉट प्रोसेस शुड गो इन दैट वे. सिर्फ यहाँ पे तुम्हारा कैलकुलेशन ट्रिकी बना है क्योंकि तुम यहाँ पे लॉग बुक्स यूज करोगे. एचएससी की एग्जाम्स में तुम लॉग बुक्स यूज करोगे स्टूडेंट्स, जहाँ पे तुम्हें लॉग्स दिए होंगे, एंटी लॉग्स दिए होंगे, नेचुरल साइंस, नेचुरल कोसाइंस, नेचुरल टैंजेंट्स, बस. नो स्क्वायर रूट, नो क्यूब रूट, नो स्क्वायर्स, नो रेसिप्रोकल्स, कुछ नहीं देते वो ध्यान में रखना स्टूडेंट्स. तो क्या मैं इसको इरेज कर दूं अभी? Can I erase this? Go to the next option, 14. Since whatever time I'm taking your lecture, students, I won't waste your time, students. जो भी मैं time utilize करूँगा, मैं पढ़ाई के लिए use करूँगा. I'll see to it कि you should get properly from me. That is what I'll do it. भले वो लेक्चर थोड़ा सा लेट शुरू हो या थोड़ा सा जल्दी खत्म हो या थोड़ा सा ज्यादा खींच लो, या तुम ऑफलाइन लेक्चर्स लेते हो या ऑनलाइन लेक्चर्स लेते हो, whatever I'm going to do it, I'll do it properly on the board to see to that you should understand. यहाँ पे और थोड़ा सा मेरा आउट ऑफ ट्रैक बोलना भी होगा तो it's not other talks, it's purely based on to studies and making to brainwash you all to channelize yourself for studies. उसके अलावा दूसरी बात नहीं होती, या तो करिकुलम के बारे में होती है या तो एग्जाम पैटर्न के बारे में या एग्जाम्स के हिसाब से होती है, और कुछ नहीं होता. नो यहाँ वहाँ की बातें होती है स्टूडेंट्स. So try to understand the way of approach towards studies. और वही सबसे करो. Don't take it too lightly. अगर मैं चाहता तो ये सारे प्रॉब्लम तुम्हें होमवर्क में दे देता, फिर पूछता नेक्स्ट लेक्चर्स में, हैव एनी डाउट्स? नहीं डाउट्स, क्योंकि मुझे मालूम है डाउट्स नहीं होंगे तो आगे बढ़ो. दिस इज हाउ थिंग्स आर गेटिंग ओवर. ईएमआई में कट डाउन ही इतना था स्टूडेंट्स, ईएमआई में कट डाउन ही इतना था, और ईएमआई में हम लोग ने क्वेश्चंस भी सॉल्व किए हैं. इसकी करने जरूरी थे क्योंकि ये सारे कैलकुलेटिव है. और सारों में हम लोग ने कौन सा फॉर्मूला यूज किया? आइंस्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन ही यूज किया. चैप्टर तुम्हारा पूरा इजी है स्टूडेंट्स, थियोरेटिकली भी बहुत इजी है, लेकिन जब तुम प्रॉब्लम्स करने जाओगे तो कैलकुलेशंस में आता है. नेक्स्ट वन, 14th. The de Broglie wavelengths associated with an electron and a proton are same. देखो यहाँ पे क्लियरली बताएं. Students, de Broglie wavelength associated with an electron and proton is the same. अभी क्या पूछा उन्होंने? फाइंड देयर मोमेंटम पहले केस में, एंड सेकंड केस में फाइंड देयर काइनेटिक एनर्जीज. देखो रेशियो पूछा उन्होंने, यानी दिया क्या है? de Broglie wavelength associated with an electron. This is question number 14. और ये एमसीक्यू भी है स्टूडेंट्स, एमसीक्यूज में आता है ये. de Broglie wavelength associated with an electron is equal to that of proton. Agreed? Are same. What will be the ratio of the momentum? यानी I want momentum of electron to momentum of proton. ये पहला क्वेश्चन पूछा है.
दूसरा काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन, ये दूसरा क्वेश्चन पूछा है स्टूडेंट्स। तो कैसे निकालोगे? सिंपल ना, ये तो मिलेगा ना स्टूडेंट्स। व्हाट इज लैम्बडा? लैम्बडा इज इक्वल टू व्हाट फार्मूला? h by p, ये तुम्हारा फार्मूला है वेवलेंथ ऑफ de Broglie। तो p को सब्जेक्ट बनाना तो मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन विल बी इक्वल टू व्हाट? मोमेंटम यहाँ पे जाएगा तो h अपॉन लैम्बडा ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई बाय लैम्बडा ऑफ प्रोटॉन अपॉन h, h विल गेट कैंसिल। रेशियो ऑफ द वेवलेंथ इज द रेशियो ऑफ वेवलेंथ सेम। हां सर, दोनों का वेवलेंथ सेम है, तो कहने से आंसर भी 1:1। ये देखो पहला आंसर 1 ही आएगा। क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? ये एमसीक्यू है। अगर मैंने काइनेटिक एनर्जी के बारे में पूछा स्टूडेंट्स, तो कैसे निकालोगे काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालोगे? तो सिंपल, लैम्बडा देखो ना, लैम्बडा के हिसाब से लैम्बडा सेम है ना। लैम्बडा का फॉर्मूला क्या है? लैम्बडा इज इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट 2m ईवी। ईवी की जगह पे क्या है? पुट के। हाँ सर, क्या आएगा? अगर तुम ध्यान से देखोगे स्टूडेंट, ध्यान से देखो, यानी लैम्बडा ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल लैम्बडा यानी h अपॉन अंडर रूट 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन is equal to h upon under root twice mass of proton, kinetic energy of proton। तुम्हें रेशियो ऑफ ये काइनेटिक एनर्जी चाहिए। देखो ना, दोनों का वेवलेंथ मैंने इक्वेट कर दिया। ये वेवलेंथ का फॉर्मूला है 2m के। यहाँ पे क्या हो रहा है सर? h कैंसिल हो रहा है। स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स क्या आ रहा है? इफ आई स्क्वायर बोथ द साइड्स व्हाट एग्जैक्टली बी? सर ट्वाइस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्वाइस मास ऑफ प्रोटॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन, रूट विल गेट कैंसिल। पूछा क्या है? रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन, तो क्या होगा? ये नीचे आ जाएगा तो क्या होगा सर? मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। स्टूडेंट्स, स्कूल लेवल में पढ़ा है, स्कूल लेवल में पढ़ा है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ा है, एटम्स मॉलिक्यूल्स एंड न्यूक्लियर में मैंने बताया, मैंने डायरेक्टली मास दिया है। लेकिन स्कूल लेवल में पढ़ा है स्टूडेंट्स, मास ऑफ प्रोटॉन is 1836 times mass of an electron। यानी स्टूडेंट्स, अगर तुम कोई ध्यान से सुना स्टूडेंट्स, अगर तुम छोटे वाले स्टोन्स लेते हो 1836 स्मॉल स्टोन्स, ओके, छोटे वाले 1836 स्मॉल स्टोन्स को तुम अगर इक्विलिब्रियम पैन में रखते हो, बीम बैलेंस के अंदर, एक दफे 1836 स्टोन रखोगे और यहाँ पे एक बड़ा सा स्टोन रखोगे, अगर पॉइंटर सेंटर में आता है तो उसका मतलब दीज मेनी इलेक्ट्रॉन्स का मास इज इक्वल टू मास ऑफ वन प्रोटॉन। ये कहाँ पे पढ़ा तुम लोगों ने? स्कूल लेवल में पढ़ा, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स भूल जाते हैं। तो मास ऑफ प्रोटॉन इसको कहना से रेशियो इज व्हाट? 1836:1। क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स? 14:1। स्टूडेंट्स बोलेंगे क्या सर ये एक पहला क्वेश्चन है जो आपने पूरा सॉल्व किया, नहीं तो बाकी सारे क्वेश्चंस आप फॉर्मूलाज लिखते हो, वाली सब्स्टिट्यूट करते हो और हमारे पे थोप दिया। घर पे करो अभी। ये पहला क्वेश्चन है। नैदीप हाँ बोल रही है। नैदीप और शर्ली हाँ सर, आपने ऐसा ही किया, चीटिंग किया हमारे साथ में। Students, what do you want me to do? Do all sorts of processes? Ingestion, assimilation, absorption, digestion, egestion also. Everything you want me to do? Students, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Can I erase it, students? क्या मैं इसको erase कर दूं अभी? Since अभी एक last question 18th वाला करो, 16, 17 you can do it for homework। तो दो question तुम अपने आप कर सकते हो, वो easy वाला है। Just try to do the 18th one।
So 81. Find the ratio of the de Broglie wavelength of an electron and proton when both are moving with. अरे ये तो आगे both are moving with same speed. Students देखो ना क्या पूछा पहले, ये भी MCQ है students. Find the ratio of, हम 18 के बारे में बात कर रहे हैं students. Ratio of de Broglie wavelength of an electron and proton. If both are moving with same speed, speed of electron is equal to speed of protons, which, है ना? So can I say wavelength is given by formula h upon under root 2m kinetic energy? Which agreed, which is equal to what? H upon m into v. ये भी तुम because it's h by p. ये तुम्हारा है फॉर्मूला. यानी इसमें से तुम कौन सा यूज करोगे? सर हम ये यूज करें. आंसर आ जाएगा. देखो वेलोसिटी सेम है दोनों केस में. स्टूडेंट्स वेलोसिटी सेम है. तो कैन आई से वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन is equal to h upon mass of electron, okay, and velocity of electron multiplied by mass of proton, velocity of it upon h. velocity दोनों में सेम है तो velocity कैंसिल हो जाएगा, h भी कैंसिल होगा. It's a ratio of the mass of proton to mass of electron. और अगर सपोज तुम्हें 1836 नहीं मालूम, what is mass of proton? 1.67 into 10 raised to minus 27 kilogram. What is mass of electron? 9.1 into 10 raised to minus 31 kilogram. अगर तुम्हें एग्जैक्ट मास है तो भी तुम्हें रेशियो मिल सकता है. आंसर क्या होगा? 1836:1. जो पहले किस में हमें आंसर मिला था ना, वही आंसर मिलेगा. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? एच कैंसिल हुआ स्टूडेंट्स. सेम एनर्जी. सेकेंड केस में क्या पूछा है? सेम एनर्जी. सो काइनेटिक एनर्जी of electron is equal to kinetic energy of proton. हिमांशु ने क्या बोला? स्टूडेंट्स क्या स्क्रीन ब्लर्ड है क्या? स्टूडेंट्स इज द स्क्रीन ब्लर्ड फॉर यू ऑल? हाँ स्टूडेंट्स. चिराग is saying it no. Please unmute yourself so that Hitanshu will get the answers because he says it's blurred. तो अनम्यूट करके बोल सकता है यार. मैसेज फॉर एवरीवन स्टूडेंट्स. क्या स्क्रीन ब्लर्ड है स्टूडेंट्स? ओके फाइन. ओके थैंक यू. देखो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन. स्टूडेंट्स ये अगर दोनों का काइनेटिक एनर्जी मेरे सेम कर दिया तो तुम कैसे करोगे स्टूडेंट्स? फॉर्मूला ये आएगा, है ना? wavelength of electron upon wavelength of proton will be equal to what? H upon under root twice mass of electron, kinetic energy of electron into under root twice mass of proton, kinetic energy upon H. स्टूडेंट्स ये कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों रूट में आएगा ना स्टूडेंट्स. twice mass of proton, kinetic energy twice mass of electron, kinetic energy. दोनों का kinetic energy सेम दिया स्टूडेंट्स. ये कैंसिल होगा, ये भी कैंसिल होगा. कहने से ये आंसर रेशियो में ही आएगा. Mass of proton upon mass of electron, and I can say root of 1836 upon 1. Are you getting it? मुझे बताओ स्टूडेंट्स, इसका स्क्वायर रूट निकालो तो कैसे होगा स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स 13 स्क्वायर 169, 14 स्क्वायर 196, 15 स्क्वायर 225. तो 1836 मिला. तो स्टूडेंट्स कहने से मैं आंसर विल बी in terms of 14 के आसपास, just less than. We can consider in that case. अभी तुम्हें देखो sorry 169 है ना, 169 है स्टूडेंट्स. I can consider in this case. So I can also go for 40 square स्टूडेंट्स. 40 स्क्वायर का आंसर कितना होगा? 1600. ये मत ले लो स्टूडेंट्स, 40 पकड़ लो. ये तुम्हारा आंसर होगा. यानी अप्रोक्सीमेटली मेरा आंसर क्या होगा? 40 से ज्यादा होगा. ये नहीं होगा, 40 से ज्यादा होगा. ये तुम्हें परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालना स्टूडेंट्स. दैट्स ऑल.
क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स? सेम मोमेंटम सेम है, तो देखो ना मोमेंटम सेम है, एच भी सेम है, तो रेशियो क्या होगा स्टूडेंट्स? मोमेंटम, सेम मोमेंटम, लास्ट केस में सेम मोमेंटम, तो ये फॉर्मूला यूज होगा। तो रेशियो क्या होगा सर? रेशियो विल बी h by p, h इसका दोनों में सेम है, मोमेंट में सेम है, रेशियो 1:1, फाइनल आंसर 1:1 होगा लास्ट केस का। यस, हिमांशु इज गेटिंग द आंसर 42.8। स्टूडेंट्स क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? Is this clear to all of you all? Yes, Chirag, absolutely correct. Fine, students. Students, today we'll wind up over here itself only, okay? Because there's a verification, police verification is going to come today. So I'm just going for that itself only. Today I'll be winding up over here. Next lecture, my students will be going with a new topic. लेकिन पहले हम radioactivity के कुछ questions करेंगे. Okay? हाँ सर, हाँ, चलो. थैंक यू सर।